वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा फारिया और आप जुड़ चुके हैं KVS EMRS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। मैं आपने लास्ट 3 वीडियोस देखी होंगी तो मैं उसका सिलेबस कवर करा रही हूँ, जो भी हमारा KVS और EMRS PGT कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है जो 11th और 12th क्लास में है, क्योंकि KVS PGT कंप्यूटर साइंस में जो आपका 11th और 12th का सिलेबस है वो ही सारा सिलेबस, सेम सिलेबस हमारे KVS PGT कंप्यूटर साइंस में है। तो प्लीज़ आप सभी लोग लास्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। मैं उसके आगे कंटिन्यू करा रही हूँ और ये बहुत ही कोर टॉपिक है पाइथन का, पाइथन लिस्ट। मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पाइथन लिस्ट को कवर किया है, उसके बारे में बताया है। अभी हम पाइथन लिस्ट के बारे में और ज़्यादा विस्तृत पढ़ेंगे। पूरा जो जितनी भी चीज़ें पाइथन लिस्ट में है हम सारी कवर करेंगे। तो वी नो दैट पाइथन क्या होता है, पाइथन लिस्ट क्या है। पाइथन लिस्ट आर पावरफुल फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर that can store element of different types. They offer a wide range of built-in function and methods to manipulate and access list element efficiently. Okay, तो पाइथन क्या करते हैं, पाइथन लिस्ट मीन्स एक सिंगल वेरिएबल में हम a large number of data, we can store a large number of data in a single variable using list. Okay, that is called Python list. Now how to create a list? Lists are created by like lists are lists are created by including comma separated values within square bracket. Okay, example, you can see my list is this is the way we can create a list. Okay, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट यू कैन do like this, and this is your empty list. Your empty list has created. If you also create a list using list keyword. Okay, this is how you can also create a empty list. And list list, if you want to insert the element in your list, yes, you can insert. This is also a list. Okay, list 4, if you want to insert more integers in your list, you can 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, if you want to insert a string in your list, you can list like Neha, Rahul. This is also a list. And if you want to insert different data type in your list, you can create that list also. See 3.50. Okay, this is also your list. So you can see, you can create a list like this. This is the first one, this is your empty list. This is how you can create your empty list. Okay, this is using a list keyword. You can also create an empty list. Okay, if you want to insert the element in your list, you can insert like this. If you want to insert single element in your list, you can insert. If you want to insert more than one element or element, so you can insert your integers like this. If you want to create a list of string, you can create. If you want to create the list of different data type, so you can also create. Now see, if I am going to print list 6. No, this is wrong. Capital LIST list 6. Okay, so I'm going to execute my program and see. दिस इज आपका लिस्ट 6 प्रिंट हो गई। इट मीन्स लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट रख सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग आपकी ऑलवेज स्टार्ट विथ 0।
लिस्ट इंडेक्सिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, निगेटिव इंडेक्सिंग होती है। अगर हम लाइक this is your list, and 1 2 3 4 5 6 7 are the element of the list. The indexing always start from 0. This is 0 1 2 3 4 5 6. इफ यू वो नेगेटिव इंडेक्सिंग 7 से स्टार्ट होगी, लास्ट से स्टार्ट होती है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, और इंडेक्सिंग किस लिए काम आते हैं? इफ यू वांट टू एक्सेस अ सिंगल एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, सो यू कैन एक्सेस यूजिंग इंडेक्स नंबर। ओके, लाइक लिस्ट 4 का थर्ड एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड एलिमेंट अभी हम प्रिंट this list 4 और index 2। ओके, ना इसको हटा देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा क्लियर रहे हमें। इसको बैक स्पेस करते हैं, देन एग्जीक्यूट और प्रोग्राम। सी, फोर्थ का थर्ड एलिमेंट 0 1 2 3, थर्ड एलिमेंट इज 3, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2। सो हमने यहाँ पर अपने एलिमेंट को एक्सेस कर लिया, बहुत इजी है। ठीक है, स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग मीन्स जैसे एक स्लाइस होता है, कोई आप केक खा रहे हो, केक का एक स्लाइस कट करते हो ना, इसी तरह से आपका स्लाइसिंग होता है लिस्ट में। ठीक है, कैसे करेंगे हम? ये देखिए, ये आपकी एक लिस्ट है, सपोज दैट दिस इज योर लिस्ट, लिस्ट 6, और आपको इसका सेकेंड एलिमेंट है 2 3 4, इतना आपको प्रिंट कराना है। तो आप कैसे करोगे? आप स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो, PRINT, प्रिंट लिस्ट 4 लिस्ट 4 आपको 3 से प्रिंट कराना है, 0 1 2 मीन्स 2 से स्टार्ट होगा। एंड दिस इज द स्टाइसिंग के लिए हम ये डबल डॉट का यूज करते हैं, 2 से स्टार्ट करके 2 3.50 एंड यहाँ प्रिंट कराना, 0 1 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक करते हैं, 4 तक। सी, एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। सी, 3 4 हमारा प्रिंट हो गया। इसको कहते हैं स्ट्रिंग्स लिस्ट स्लाइसिंग। ओके, अगर हमें कोई भी पार्ट अपनी लिस्ट का प्रिंट कराना है तो स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। अब लिस्ट के में फंक्शंस होते हैं, लेन, अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप। इनका यूज करके लेन फंक्शन का यूज करके हमें पता चलता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आवर स्ट्रिंग, हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो उसके लिए आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल यूजिंग सिंपल लेन फंक्शन you can print the length of your list. Append function, append if you want to add some integer or string in your list, so use append function. Extend function is also used for appending the data in list. Insert function is also used for appending the data in your list. Remove function to remove any, if you want to remove or delete any element from your list, you can use remove function. Pop function is same as remove function. If you want to remove anything from your list, you can use remove or pop function. But append, extend, insert, ये तीनों ही डेटा को ऐड करने के लिए यूज होते हैं, बट उनमें एक लिटिल डिफरेंट है, एक डिफरेंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद प्रैक्टिकल। रिमूव और पॉप में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, होते दोनों ही रिमूव, डेटा को रिमूव करने के लिए, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे फंक्शंस का प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, एंड ठीक है, ये मैंने बताया अभी आप कैसे इंडेक्सिंग के थ्रू अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो लिस्ट से। निगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है, और इफ़ यू वांट टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, और आपको नहीं पता है कि हमारे लास्ट एलिमेंट कितने हैं, तो यू कैन सिंपली access like this. Okay, I will show you, like this is my list. Okay, print list 4,
लास्ट एलिमेंट चाहिए -1। सी क्या है, मैं इसको हटा देती हूँ सो दैट आपको आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको भी डिलीट कर देते हैं एंड देन मैं एग्जीक्यूट कराती हूँ अपना प्रोग्राम। देख सी, ओह सम एरर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज नहीं किया है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है। ओके, माय बैड। So, oh, no. Yes. Just now I'm going to execute my program and see the answer. The second alley, the last. Oh, sorry, this is 1. I should write -1, right? Negative indexing per day. So see the, yes, 7. 7 is the last element of list 4. So this is for negative indexing. If you want to second last element, you have to write -2. C, 6 is the output. So आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा पाइथन लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, कौन कौन से इसमें फंक्शन और मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंक्शन मेथड, जो भी इसमें फंक्शंस और मेथड होते हैं लिस्ट में, उनको प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी। और ठीक है, आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।